So, okay. So, good evening, everyone. And it is the second Wednesday of the month at 7 p.m. Like always, we have gathered here for our caregiver support group meeting. This time, the World Hospice and Palliative Care Day happens on every second Saturday of October. And it's an annual thing. And World Hospice and Palliative Care agencies, everybody, all the palliative care physicians, they do their bit in making people more aware about palliative care. And so this time the theme is leave no one behind. Many times we are not able to understand how and what geriatric patient wants, and we are confused in the care. They have special issues as compared to our adult and young population. So today we have gathered here to discuss care for the elderly. And when I thought about this, I could not think anybody else but about Dr. N.P. Singh. He is such a magical person. Anybody who meets him for the first time is like thoroughly impressed and, falls in love with him. So I met him. He as the medical director when I joined in Max Vaishali, and right now he is. I'm a volunteer. He's the advisor research. Can you put on camera, please? Advisor research, SGT University, Gurugram, and he's a faculty with Max BLK Hospitals. Then we have with us Dr. Rupa Rajan, who is the assistant professor in neurology at AIIMS, New Delhi. And then we have Dr. Gaurav Channa, who's a senior consultant, pain medicine and palliative care at Max Hospital, Saket. Then we have Ms. Neha Sinha, who is the CEO and co-founder of Epoch Elder Care. She's a dementia specialist, a clinical psychologist by her training, and she was also featured in Forbes 30 Under 30 Asia list in 2016. So a warm welcome, and I'm Dr. Megha. I'm the pain and palliative care specialist at Max Vaishali. A warm welcome, and thank you so much, everyone, for taking out time on this busy, everybody is busy in festivities in this season. So thank you so much for taking out time for us. Yeah. So I think without wasting any time, we'll move on to our session. I'll just start with a little story that happened with me recently. When I had joined newly in the hospital, and Dr. Lavi, who's a nephrologist in our hospital, she referred a patient to me, an elderly person, CKD5 on hemodialysis, and he happened to have a fracture in one of his vertebra, I think some D12 or something, and then he developed paraplegia following the fracture, and she called me in for pain management for that patient. And while we were discussing things with the family about surgery and what can be the things that can follow after surgery, should we do surgery, yes or no, for I think he was 75 or so. So and during that time I mentioned to the attendants during the family meeting that when even if he is bedridden and he's not able to move, please give him that liberty to talk and let him take his own decisions for himself. He is conscious oriented, and we need to involve him in family discussions and everything, because so that was one point that Dr. Lavi, after we finished the family meeting, she said, that's so true. And we forget telling caregivers about this thing, because everybody tries to care a lot when the patients become bedridden and they are sick. So they take too much care that they forget involving the patient themselves in the care. So that was just one little incident that I wanted to tell. So N.P. Singh sir, what are the three main medical health issues that the patients or the caregivers, they come to you with? Geriatric population mein what language should we speak? Should we speak English or a mixed or anything, whatever you say? Mixed. I think मैं बहुत देर से इंग्लिश में बोल रही हूँ, मेरे को अभी बात क्वेश्चन बोलते ही याद आया, सॉरी.
तो हाँ। हाँ, हम हिंदी मेनली यूज करेंगे। तो लेट मी मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि ऑलमोस्ट 7 से 8% पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो एल्डरली है, और ये संख्या बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगी। और हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड आई सी मेनी ऑफ देम sitting are have gone to a geriatric age group which is 60 in our country, but ज्यादातर बाहर के देशों में वो 65 साल है। इनकी एक peculiar issues है। मैं मेडिकल इश्यूज पे आता हूँ अभी की। what I feel is that we need not focus on medical issues. There are a lot of other issues, including social issues, including financial issues. Many of them retire or stop working. But medical issues में मुझे लगता है कि आपने जो बात करी, एक तो ये एक हम लोगों ने सर्वे किया था आज से 15 साल पहले, WHO की स्पॉन्सर्ड सर्वे था कि 10 important problems with the elderlies, and one of the most important problem is the articular problem, is joint pains. Joints, knee joint pain or a backache or some other joint pains. And of course, comorbidities like blood pressure, sugar. If you talk about almost 30 to 40% of the elderly population have high blood pressure and diabetes. And of course, there are other issues. So what is important for us to understand them, to have patience. They will have visual issues. They will have, hearing issues. So it's extremely important for us to be patient. As doctors, we are not patient. We should be patient, listening to them, और हमें उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए. Try to understand them. Try to have a good communication skills so that they feel secure talking to us. मुझे लगता है कि पहला तो इसी पे ही फोकस हमें करना चाहिए कि वो एक स्पेशल वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिनकी बात हम ध्यान से सुने और फिर उनको समझने की कोशिश करें कि वो हमारे पास क्यों आए। मैं एक फिजिशियन हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास ज्यादातर लोग अपने मेडिकल इश्यूज लेके आते हैं, लेकिन क्योंकि मैं कम्युनिकेशन में बिलीव करता हूँ, तो कई बारी वो अपनी पारिवारिक समस्याएं या उनकी अपनी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है उस पे भी वो बात करते हैं। थैंक यू नेहा, एंड इफ यू वांट विश मी टू कंटिन्यू, आई लाइक एवरीवन टू कंट्रीब्यूट। सो अगर और कोई प्रश्न हो तो आप जरूर बताएं। Sir, so what do you usually advise to such families or caregivers when they approach you with their medical problem? हाँ, तो How सबसे to manage these particular medical problems? आई थिंक सबसे पहले तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपके पास कितनी पर्चियां हैं। You see, please understand that many of them have been to orthopedics, have been to psychiatry, have been to cardiologists, and if you talk about Max PLK group of hospitals, we have a number of specialities going on except for geriatric care. So yes, I do talk to them at what is their concern. If the caregiver has come, मुझे लगता है कि उनसे भी बात करनी चाहिए कि सबसे ज्यादा इश्यूज क्या है। क्या वो रात को बार बार उठ के पेशाब करने की है, जो कि एक समस्या है? क्या वो चलने की है? क्या उनकी कोई फॉल्स तो नहीं हो रही है, तो वो गिर तो नहीं रहे हैं? या फिर उनकी शुगर बहुत हाई है, या उनके पास एडियरेंस, मेडिकल एडियरेंस है, या वो साइकोलॉजिकली अफेक्टेड है? तो वो सब चीजें एक बारी फर्स्ट विजिट में मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि मेजर व्हाट हैज ब्रॉट यू टू मी, and then they come out with their problems. Many times they are hidden problems, but it does come out. Sometimes they feel a bit, when you talk to them alone, then you feel that elderlies में एक सबसे ज़्यादा ये है कि they are the most so-called neglected lot in terms of, there are both ways, but ज़्यादातर लोग अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, तो वो elderly बेचारे घर पे रह जाते हैं, और उनको बहुत सारी समस्याएं होती जो कि वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनके समय भी बिता नहीं पाते। तो ये कुछ इश्यूज हैं, आई थिंक विच शुड बी एड्रेस्ड व्हेन एनी पर्सन कम्स टू यू फॉर द फिजिकल एलिमेंट। बट मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री टेकिंग एक डीप में होनी चाहिए, सबसे स्पेशली जब आप पहली या दूसरी बार बात करते हैं। राइट सर, तो ऐसे में आप केयर गिवर्स को क्या एडवाइस करते हो अगर ऐसे जनरल प्रॉब्लम्स होते नहीं कर पाते, तो कैसे आप केयर गिवर्स को? जैसे सर किसी को ब्लड प्रेशर है या शुगर है एल्डरली एज ग्रुप में, जो कि मोस्ट कॉमनली मिलते हैं, तो आप के पास जब वो आते हैं, या तो वो न्यूली डायग्नोस्ड होते हैं या फॉलो अप में होते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनको ये समझाया जाता है कि बीमारी क्या है, लाइफ लॉन्ग बीमारी है, और थोड़ा सा ये गाइडलाइंस भी आजकल क्लियरली कहते हैं कि
हमें पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच अपनानी चाहिए। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए क्या जो लिस्ट ऑफ दवाइयां हमने दी है वो पेशेंट खा रहा है या नहीं खा रहा है, उनकी एडेरेंस क्या है, पेशेंट क्या चाहता है, क्या वो हम सिर्फ दवाइयों की बात, अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ दवाइयों की बात करते हैं, हम लाइफस्टाइल की बात नहीं करते, हम उनकी डाइट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, हम उनसे नहीं पूछते कि वो क्या चाहते हैं। गाइडलाइंस की भी बात करूं तो डायबिटीज हाइपरटेंशन की भी बातें होती है कि यस वी शुड बी स्ट्रिंजेंट, बट ऑन द अदर हैंड आजकल वो ज्यादातर एसोसिएशंस भी एक पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच में एल्डरलीज के लिए अदर टारगेट्स करती हैं और यंगर इंडिविजुअल्स के लिए अलग टारगेट्स। अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो जरूरी नहीं है कि हमें HbA1c 6.5% पे ही रखना है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया और बाकी इश्यूज ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं उनसे। तो हाँ, मैं उनसे बात करता हूँ कि आपका क्या कंसर्न है, और उसके बाद मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कुछ दवाइयां हैं जो बहुत जरूरी है, ये खानी है। ब्लड प्रेशर हमें हफ्ते में 1 या 2 बार चेक करवाते रहना है, हमें डाइट के ऊपर भी ध्यान रखना है, हमें रेगुलर मील्स खानी चाहिए, उनके ऊपर भी ध्यान रखना है, और अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो उनको भी एड्रेस करना है। Yes, यस मेघा। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। सो एंड डॉक्टर रूपा, बहुत सारे एल्डरली में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ना, सो क्या 3 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं जो आपके पास हमारे जो बड़े लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, वो लेकर आते हैं? यस, थैंक यू डॉक्टर मेघा। तो एज अ न्यूरोलॉजिस्ट हमारे पास जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो मेडिकल इश्यूज लेके आते हैं, हमें पता होगा कि न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां, बाय विच आई मीन देर आर सम कुछ बीमारियां ऐसे होते हैं जिनमें हमारे ब्रेन के जो तंत्रिका कोश है, जो नर्व सेल्स हैं, उनका नंबर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यूजुअली इस तरह की बीमारियां आफ्टर द एज ऑफ 60 years थोड़ा ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो उनमें सबसे कॉमन आप सुने होंगे अल्जाइमर्स डिसीज या डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिमेंशिया। एंड मैं पर्टिकुलरली एक मूवमेंट डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे पास बहुत मरीज आते हैं पार्किंसंस डिसीज, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है इन अडल्ट्स ओवर द एज ऑफ 60 years। तो ये न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां हैं। इसके अलावा सबसे कॉमन एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आजकल है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का जो प्रेवलेंस है वो जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जिनके हाई है, कार्डियक इश्यूज हैं, और एज इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स के साथ समटाइम्स जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्रेन में ब्लड लेके जाते हैं, उनमें ब्लॉकेजेस आ सकते हैं एंड स्ट्रोक के सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स आ सकते हैं। 2 तरह के स्ट्रोक्स हो सकते हैं, एक में जिसमें ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो, जिसको हम इश्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, या ब्रेन में ब्लीडिंग हो, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स समटाइम्स, स्पेशली एल्डरली में, न्यूरोपैथी के सिम्टम्स काफ़ी कॉमन होते हैं। जैसे हमने जॉइंट डिसीज के बारे में बात किया, नम्बनेस या झुंझुनाहट, ये सेंसेशंस, एबनॉर्मल सेंसेशंस फील करना, पैरों के हाथों में वीकनेस, तो ये सब समटाइम्स नर्व्स की न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हो सकते हैं। एंड न्यूरोपैथी जो है वो समटाइम्स न्यूट्रिशनल हो सकता है, स्पेशली वेजिटेरियंस में विटामिन डेफिशिएंसीज, डाइट का अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी स्पेशली, ऐसे न्यूरोपैथी, बैलेंस प्रॉब्लम्स, ये सब के साथ आ सकते हैं। तो ये जैसे डॉक्टर सिंह ने कहा, मैं भी ये एम्फसाइज करना चाहूँगी कि ये सब मेडिकल बीमारियां हैं, बट जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनका होलिस्टिकली अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जैसे अगर आप पार्किंसंस डिसीज़ की बात करेंगे तो हमें पता है जो कॉमन सिम्टम्स है पार्किंसंस डिसीज़ का, वो है कंपन, चलने में स्लोनेस, हाथ से काम करने में धीरापन, अकड़पन, फॉल्स, गिरना, ये सब पार्किंसंस डिसीज के कॉमन सिम्टम्स है। बट ये सिर्फ एक मोटोर सिम्टम्स वाली बीमारी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स में अगर हम पूछेंगे तो उनको थोड़ा सा मेमोरी में प्रॉब्लम्स, कभी कभी मन में उदासी, कुछ लोगों को हेलुसिनेशंस, ऐसे चीज़ें दिखना या सुनना जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है, ब्लैडर कंप्लेंट्स,
नींद नहीं पूरा होना, ये सारे सिम्टम्स पार्किंसंस डिजीज जैसे एक जो हम सोचते हैं मोटर बीमारी है उसमें भी हो सकते हैं। तो ये सब समटाइम्स हम एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल केयरिंग फॉर पेशेंट्स, ये सब जब तक हम पूछेंगे इट मे नॉट कम अप, एंड जब तक आप ये सब एड्रेस नहीं करते पेशेंट का ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीजें हमें होलिस्टिकली देखना होता है, एंड इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है फिजियोथेरेपी, डेली एक्सरसाइज, नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज बट कॉग्निटिव एक्सरसाइज या सोशली इन्वॉल्व रहना। सो ये हमने देखा है कि कोविड टाइम में स्पेशली बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स इंक्रीज हुए हैं बिकॉज ऑफ सोशल आइसोलेशन। सो ये सब एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये सब भी पूछ के एड्रेस करना बहुत जरूरी है पेशेंट्स की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए। एंड इट्स अ टीम वर्क जिसमें पेशेंट इज एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल ऑफ केयर, एंड द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है केयर गिवर। So उनके सपोर्ट के साथ एज अ टीम वी वर्क टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग दीज प्रॉब्लम्स एंड एड्रेसिंग देम वन बाय वन। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी स्पेशली एल्डरली में, एक चीज है जो हम हमेशा देखते हैं स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समथिंग लाइक पार्किंसंस डिजीज, मेडिकेशंस। बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आते हैं बड़े बड़े लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस लेके, एंड कुछ कॉमन मेडिसिन है जैसे जो गैस की गोलियां हैं सम ऑफ देम, कुछ नींद के लिए या मन की परेशानी के लिए लेते हैं। उन दवाइयों से भी पार्किंसंस जैसे या डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत सिंपल प्रोसेस है ऑफ स्क्रीनिंग थ्रू ऑल दिस प्रिस्क्रिप्शंस, एंड ये आइडेंटिफाई करके इन दवाइयों को बंद करने से या मॉडिफाई करने से ही समटाइम्स काफी सारे सिम्टम्स, मेमोरी प्रॉब्लम्स, ब्लैडर प्रॉब्लम्स, फॉल्स, ये सब इम्प्रूव हो सकते हैं। तो these are some things that I particularly look out for when somebody elderly who presents with neurological problems. जस्ट इसमें मैं एक ऐड करूं, मेगा बहुत अच्छी बात करी रूपा ने कि देखिए लिस्ट ऑफ मेडिसिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एल्डरली एक इंसान पूरा है, उसकी ब्रेन में पार्किंसनिज्म है। बहुत अच्छी बात करी इन्होंने कि बहुत कॉमन होता जा रहा है। इनफैक्ट मैं जिस संस्था में हूँ अभी ही मेरे पास एक 85 साल के इंसान है जिनको कि पिछले 1 साल 2 साल से इश्यूज हैं, लेकिन उसको देखिए ये भी समझना है और समझाना है कि पार्किंसन की दवाइयों की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि इस उम्र में ही प्रोस्टेट की बीमारी भी होती है, ब्लैडर इश्यूज भी होते हैं, तो क्या दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं ये भी हमें समझाना जरूरी है, ताकि पेशेंट अगर आके हमें ये कहता है कि उसकी पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और पेशाब नहीं खुल के आ रहा है और उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो हम उसको ये समझा सकते हैं कि ये जो दवाइयां आपको शुरू करी गई हैं उसकी वजह से भी ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि एक कॉमन डॉक्टर का या केयर गिवर के साथ एक कम्युनिकेट करने वाला एक फिजिशियन अच्छा हो या एक पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हो, जो कि बहुत कम लोग हैं आजकल, कि वो ये समझा पाए कि किस हिसाब से हमें उसको दवाइयां देनी है, किसका साइड इफेक्ट किसको काउंटरएक्ट करेगा। देखिए वो अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट जो है वो उसको ब्लड प्रेशर है, शुगर की वजह से उसको हार्ट की भी इश्यूज हैं, डिमेंशिया कॉमन है, B12 की कमी भी हो रही है, उसको बहुत ज्यादा यूरोलॉजिस्ट के भी पास जाता है। तो हमें एक जैसे इन्होंने कहा रूपा जी ने कि होलिस्टिक व्यू लेना है, उनको बहुत प्यार से ये समझाना है कि जो जरूरी दवाइयां हैं वो लेते हैं, और हमें ये भी समझना है कि ज्यादातर दवाइयों की डोज इस एज में, क्योंकि बहुत सारे किडनी का मैंने भी बात ही नहीं करी या ऑर्गन्स जो है थोड़ा माइल्डली डिसफंक्शन होते हैं, तो उसकी वजह से द डोज रिक्वायरमेंट आल्सो रिड्यूस। तो एक मुझे लगता है कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेना बहुत जरूरी है ऐसे पेशेंट्स के, rather than following a specific guideline. बिल्कुल, यस, थैंक यू सर। सो डॉक्टर गौरव, पेन मेडिसिन, पैलिएटिव केयर क्या है और ये जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? So pain and palliative care, there are two aspects of care which we provide. So pain we manage for any condition, डॉक्टर गौरव mostly हिंदी में as बोलेंगे तो being बेहतर involved है। with oncology.
जब हम दर्द की बात करते हैं तो दर्द किसी भी कंडीशन से हो सकता है। सबसे ज्यादा कॉमन जो है, जैसे डॉक्टर सिंह ने भी बताया कि मस्कुलोस्केलेटल या हड्डी और मांसपेशियों की वजह से इस एज ग्रुप में हम ज्यादा दर्द की कंडीशंस देखते हैं, आर्थराइटिस और बैक पेन, कंधे का दर्द। तो ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशंस रहती हैं 60 के ऊपर एज ग्रुप में, जो हम मैनेज करते हैं दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, राइट अप्रोच लेने से, क्या चीजें नहीं करनी है और कब फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी है और कब इन चीजों से ऊपर उठना है और हमें कई बार कुछ इंजेक्शंस की जरूरत होती है या फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। तो एक अप्रोच जो कि उम्र और पेशेंट पे निर्भर करती है, जैसे डॉक्टर सिंह ने कहा था कि एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेनी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि 80 साल में सर्जरी नहीं होती या 90 साल में सर्जरी नहीं होती, बिल्कुल होती हैं और बहुत सक्सेसफुली होती हैं। ये डिपेंड करता है कि मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ वो 80 में 80 का ही है या 80 में 60 का है या 80 में 90 का है। तो हर एक इंसान के कंडीशन और बाकी कोमॉर्बिडिटीज जो जैसे हमने सबने बात की, उन सब को ध्यान में रखते हुए वो अप्रोच लेनी होती है। इसीलिए शायद पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट ज्यादा समझ पाते हैं इस एज ग्रुप को। और पैलिएटिव केयर की अगर हम बात करें, उसमें से एक सिम्टम की हमने बात कर ली, पेन की। मैंने अभी जो सब सलाह बताई वो सब पेन को मैनेज करने के लिए था। तो मोस्टली हम चीजों को मैनेज करते हैं। तो जैसे डॉक्टर सिंह ने कहा बीपी को मैनेज करना है, शुगर को मैनेज करना है, तो डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं कि किस अप्रोच के साथ आप दवाई से मैनेज कर सकते हैं। कई बार दवाई के बगैर भी मैनेज हो जाती हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास आए तो दवाई लेनी है, और बहुत ध्यान से दवाई लेनी होती है एल्डरली एज ग्रुप में, कि एक दूसरे के साथ दूसरी दवाइयों के साथ कोई इंटरेक्शन ना हो। और पेलिएशन के लिए हमें जानना जरूरी होता है पेशेंट के हालात क्या हैं, उनकी क्या क्या बीमारियां हैं, उनके घर के कंडीशन क्या है, उनका केयर गिवर पे कितना निर्भरता है और उनका केयर गिवर कितने अच्छे से वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी मीट कर पा रहा है, और क्या उसे किसी और की सहायता चाहिए और वो किसी और की सहायता कैसे ले सकता है। तो उसमें हम लोग जब कैंसर से पीड़ित लोगों की बात करते हैं तो कई ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है सिम्टम्स को मैनेज, क्योंकि उसकी पेशेंट उनकी जो परिवार वाले हैं उनकी केयर की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई है कि वो अकेले नहीं संभाल पा रहे हैं, और या फिर वो अकेले ही इतना परेशान हो रहे हैं जो उनकी केयर कर रहे हैं, ना वो खुद सेटिस्फाई हो पा रहे हैं ना वो अपने परिवार वालों को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजों को ओवरव्यू करने का और एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सपोर्ट बनने का काम जो होता है वो पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट करता है। चाहे वो अभी अधिकतम हिंदुस्तान में अभी तक हम पैलिएटिव केयर को एसोसिएट कर रहे हैं कैंसर से, पर ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से ऑल बीपी, ब्लड शुगर, किडनी फेलियर, heart की problems, so liver failure, so these all conditions would require palliative care at some or other point of life. Yeah, thank you, Dr. Gaurav. So Neha, assisted living क्या होता है? Hi, Dr. Megha. Firstly, thank you for having me here. Megha, assisted, so Epoch Elder Care जो है, जो संस्था है, co-founded and I head. So we basically have
हमारे जैसे केयर होम्स होते हैं इन शॉर्ट। सो जो एल्डरली जिनको अपने रोज के दिनचर्या के काम में असिस्टेंस चाहिए होता है, चाहे खाने पीने में, नहाने में, वॉक करने में, कपड़े बदलने में, कंघी करने में, एनी ऑफ दीज थिंग्स में असिस्टेंस चाहिए होता है, या अपना बेसिकली अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जब वो नहीं जी सकते हैं, तब अभी इंडिया में धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आ रहा है केयर होम्स का। इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज दिस इज वेरी कॉमन, काफी एस्टेब्लिश्ड है, बिकॉज जब आप इस स्टेज में होते हैं लाइफ के, तो यू कांट स्टे इन अ हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल में सिर्फ क्यूरेटिव या आप कोई बीमारी ठीक करने के लिए जाते हैं। और नॉर्मल जो हमने सुना होगा ओल्ड एज होम्स जो होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिसमें उसका कॉन्सेप्ट होता है वहां आपको हाउसिंग मिलती है, मीन्स आपके ऊपर यू हैव अ रूफ, आपको खाना मिलता है, यू हैव असिस्टेंस। बट इफ यू हैव अ क्रॉनिक कंडीशन जो कि धीरे धीरे कैन ऑल्सो बिकम पैलेटिव, can also need palliative care, so any condition like that which requires help day to day basis पे, उनको हम assisted living homes में रख करके देखभाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल घर के जैसे होते हैं, नर्सिंग होम के जैसे क्लिनिकल एनवायरनमेंट नहीं होता है टिपिकली इनका। थोड़ा ऐड कर दूं मेघा, अगर तुम कहो तो। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू आ रहा है कि हमारे जो एल्डरली नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और जहां तक केयर गिवर की अवेलेबिलिटी का सवाल है वो कम होते जा रहे हैं। आप अगर शहरों में देखोगे तो ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द कपल्स आर नाउ वर्किंग, और वहां पे अगर उनके घर में कोई एक एल्डरली है तो उनके पास ना समय है और ना ही वो सपोर्टिव केयर है जो कि दे सकते हैं। स्पेशली मैं जहाँ रहता हूँ, मैं तो गांव के आसपास में हूँ आजकल, लेकिन चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ एक स्टडी में ये बताया गया था कि ऑलमोस्ट 50% एल्डरली कपल्स आर स्टेइंग अलोन। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग आई थिंक अगर हम सोशल सपोर्ट की बात भी करें तो ये एक कंसेप्ट अच्छा है, असिस्टेड लिविंग, जिसको कि हम दो तरीके से पूरा कर सकते हैं। एक तो जैसे नेहा ने बताया कि इनके पास दे आर इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर केटरिंग टू दिस। मोर इम्पोर्टेंटली, अगर हम ये ही एक सुविधा उनके पेशेंट के और एल्डरली के घर पे दे रहे हैं, तो एक कंसेप्ट है जीरियाट्रिक केयर असिस्टेंट का, जो कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हम लोग यहाँ शुरू ऑलमोस्ट करने वाले हैं और चाहे कर लेंगे, जो कि एक 12th का स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड का है, वो अगर देखिए, आजकल हमें स्किल डेवलपमेंट की बात करनी है और ये कहना है कि किस तरीके से हम एक 6 महीने की ट्रेनिंग दे के उस बच्चे या बच्ची को एक ऐसा जीरियाट्रिक केयर असिस्टेंट बना सकते हैं जो कि वो उनके साथ रहे, उनको उनका साथ दे, फिजिकल मेंटल सोशल साथ दे, उनको साथ में लेकर आकर बाहर भाग में घुमाए, उनके लिए दवाइयाँ दे, उनको अगर वॉशरूम जाना है तो साथ में जाए, उनको क्या खाना पसंद है वो बना के खाए, और उनको क्या पूजा करनी है, स्पिरिचुअल सपोर्ट भी उनको दे, उनको पाठ करके दें। तो ये एक ऐसी एक चीज है जो कि यहाँ पे इंडिया में कोई कंसेप्ट ना है और ना ही मुझे लगता है आगे बहुत सालों में होगा। तो हमें डिपेंडेंट हमें करना पड़ रहा है। एक समय था जब मैं 60+ हो गया तो मुझे लगा कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी एक बच्ची बाहर है और मेरा बेटा बेंगलोर में है। तो बहुत अच्छी संस्थाएं हैं जो कि आपको लगती हैं, लेकिन वो घर है या एक कम्युनिटी लिविंग होगी। बट मुझे लगता है अपने ही घर में अगर हमें एक ऐसा इंसान मिल जाए जो कि हर तरीके से आपकी सेवा भी करे और आपका साथी भी बने, तो उस सिचुएशन में ये एक बहुत अच्छी चीज होगी और इसको हमें बढ़ावा देने की जरूरत है। मैं एग्री करता हूँ, संस्थाएं जो नया चला रही हैं वो भी हैं, और लेकिन कई बार थोड़ा सा एक अफोर्डेबिलिटी का बात आ रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीजों को काफी सपोर्ट कर रही है। बहुत सारी सोशल इश्यूज भी आ जाते हैं कि वो इंसान ने अपना घर ऑलरेडी जो उसके पास था वो बच्चों को दे दिया और बच्चों ने नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसको कि रिवर्स मॉर्गेज और बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो कि एल्डरली को सपोर्ट करती हैं। बट मैं इस बात को बिलीव करता हूँ कि अब समय आ गया है कि जब हमें एक साथी उस इंसान के लिए ढूंढना है, साथी इन टर्म्स ऑफ जो कि उसका ध्यान रख पाए और उसकी बातों उससे बातें कर पाए और उसके साथ हर जगह रहे। तो ये एक कंसेप्ट है, मुझे लगता है कि बहुत एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। Absolutely, sir. Thank you. Yes, तो होम केयर सर्विसेज यस आजकल बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो क्या वो होलिस्टिकली उस केयर को कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हमें वो ट्रेनिंग एंड जैसे सर ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ऐसे एक एल्डरली की होलिस्टिक केयर करना है। राइट, थैंक यू सर।
सो डॉक्टर गौरव, हम लोग जैसे पैलिएटिव केयर फिजिशियंस हैं, तो हम लोग केयर गिवर्स से काफी क्लोज होते हैं और हम उनसे हमेशा बात करते हैं अबाउट देयर स्ट्रगल्स। तो आपको क्या लगता है, जो केयर गिवर्स अपने पास कोई एल्डरली पेशेंट की केयर कर रहे होते हैं, वो क्या क्या चीजों में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको क्या क्या परेशानियां होती हैं? जैसे जब हम बात करते हैं लोगों की जो अपने पेरेंट्स की केयर कर रहे हैं या अपने फैमिली मेंबर्स की केयर कर रहे हैं, तो उनके साथ जो मोस्ट कॉमन मुझे लगता है जहाँ इश्यूज आते हैं, जब एक इंसान की तबीयत इतनी खराब होने लगती है कि उसकी वजह से, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वो दूसरों पे निर्भर होने लगते हैं, तो तब वो केयर उनको सही तरीके से मिल पा रही है या वो दे पा रहे हैं, या वो कुछ और बेहतर कर सकते हैं, या कुछ ऑप्शन है। जैसे हम कैंसर पेशेंट्स की बात करते हैं, तो कई बार ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड ट्रीटमेंट एंड जो उनका जैसे काम रहता है टू सपोर्ट देम, to let them take a independent decision whether जो भी ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो भी अवेलेबल हैं वो उस तरफ सोचना चाहते हैं, और किस तरीके से ले सकते हैं हम उनको गाइड करते हैं कि पेशेंट से डिस्कस करना है। अल्टीमेटली जिसकी लाइफ है, द पर्सन शुड, इफ वो इंसान इस कंडीशन में है कि वो अपने डिसीजंस लेना ले सकता है और जिंदगी भर लेता आया है, तो हमें उनसे ये हक लेना नहीं है। वी विल लेट देम टेक दिस डिसीजन कि क्या किस तरीके की केयर और किस तरीके का ट्रीटमेंट उन्हें आगे मिलेगा। और बाकी जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स जो हम यूज करते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले कि भाई उस ट्रीटमेंट से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, उस ट्रीटमेंट से पेशेंट का फायदा हो रहा है, और क्या वो डिसीजन मेकिंग ट्रीटमेंट की पेशेंट खुद कर रहा है, और बाकी उस डिसीजन से कितना क्या रिस्क और बेनिफिट्स हैं, क्या पेशेंट की फैमिली को क्या मुश्किलें आएंगी और पेशेंट को क्या मुश्किलें आएंगी, ये सब डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं हमारी। यस, आई एग्री। सो आई थिंक डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है हमारे केयर गिवर्स के लिए, जो मैंने नोटिस किया है, स्पेशली इन कैंसर पॉपुलेशन एंड अदरवाइज ऑल्सो, कि ना कि हम क्या करें, मतलब कहाँ तक करना है। सपोज एक 80-year-old बेड रिडन पेशेंट है, तो हम कितना तक उनको बारी बारी कब कब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं, या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड हैं कि इस समय पर आएंगी, या हमें छोटे छोटे पे हॉस्पिटल रश करना चाहिए। आई थिंक ये डिसीजन मेकिंग में हमारे केयरगिवर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो इसका आंसर यही है कि अपने जो भी प्राइमरी या तो केयरगिवर हैं, लाइक फिजिशियन से आप अगर टच में हो, तो उनसे आप रखनी चाहिए, और बात क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल नहीं भी है तो एक्सेप्टेबल है, और क्या क्या हमें कब कब इन्वेस्टिगेट कराना है, कब हॉस्पिटल लेकर आना ही है। सो ये अपने है, सपोज कैंसर है या और कोई ऐसे, अपने प्राइमरी अगेन जो टीम है केयर स्पेशलिस्ट से टच में रहें, और डिसीजन होना चाहिए कि हमें हॉस्पिटल लेके जाना है नहीं जाना है, क्या फ्यूटाइल ट्रीटमेंट से नहीं होगा। जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा, हमेशा रिस्क और बेनिफिट्स को हम तोलते हुए पेशेंट्स को, स्पेशली जीरियाट्रिक पॉपुलेशन को, कुछ भी ऑफर करते हैं ना। मैं एक और देता हूँ, मैं आपको, देखिए मैं एक गुर्दा विशेषज्ञ हूँ, और किडनी के डॉक्टर के पास आप जब भी मरीज को लेके जाएंगे, अगर उसका प्लेटलेट इतना बढ़ गया है तो मरीज को ये बताया जाएगा कि आपको डायलिसिस की जरूरत है। तो हम एक्चुअली ये एक डिसीजन जो डॉक्टर लेके वो पेशेंट पे थोप रहा है कि आपको डायलिसिस की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है हमें। जैसे कि शेयर डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है,
तो हमें लगता है कि कई बारी हम लोग सिर्फ वही बताते हैं मरीज को जो कि हम चाहते हैं वो करवाए। अब इस सिचुएशन में देखिए, अगर पेशेंट के गुर्दे काफी इरिवर्सिबली डैमेज हैं तो उसको हमें तीनों ऑप्शंस बतानी चाहिए कि आपकी डायलिसिस एक ऑप्शन है, आपका ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है, और आप दवाइयों पे रहते रहे वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। कि क्या जरूरी है कि वो पेशेंट हमारे हिसाब से ही चले और कहे कि नहीं मुझे डायलिसिस करवाना चाहिए और ट्रांसप्लांट चाहिए? हाँ, हम उसको बताएं कि 70 साल की एज में अगर आप डायलिसिस करवाते हैं तो ये फायदे हैं, नहीं करवाते हैं और तो क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है। तो एक इन दोनों पेशेंट और डॉक्टर अगर मिलके ऐसी बातों का डिसीजन देते हैं जो कि स्पेशली लाइफ लॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन होगा। बट कई बारी हम थोड़ी शॉर्ट सेंट्रिक हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो ही पेशेंट के लिए ठीक है। यही बात कैंसर की है, यही बात बाकी लॉन्ग टर्म, जैसे डॉक्टर रूपा ने बात करी बहुत सारी बीमारियों की, तो हमें उनको बताना चाहिए कि आज के दिन में हमें जैसे बताया कि होलिस्टिक व्यू लेना है। तो क्या दूसरी पत्तियां जो कि आजकल ज्यादा साइंटिफिक भी हो रही हैं, क्या उसमें इसका कोई इलाज कारगर है या नहीं है, वो भी हमें, मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई मरीज, हम हमेशा अपनी पत्ती कोई ठीक पाते हैं और दूसरों को हम कहते हैं कि नहीं नहीं वो नहीं करिए, चाहे वो यस डू नो हार्म, ये वाली हमें सिचुएशन रखनी चाहिए। और अगर कोई योगा कर रहा है या अपने और भी किसी हार्मलेस दवाई का सेवन करके फायदा उठाना चाहता है, so there should be a holistic and a collective decision, and which should be taken on behalf of the patient and the family, because they are not empowered and they are not that knowledgeable to decide about the particular disease. That's true. Megha, can I add something over here? Yeah, please go ahead. So डॉक्टर सिंह ने जो बात बोली उसी का आई जस्ट वांटेड टू ऐड एक और लेयर टू इट, जो कॉम्प्लिकेशन बेसिकली हम देखते हैं अपने सेटअप में, बिकॉज हमारे पास वी हैव अबाउट 50 एल्डरली एंड हमारे पास एवरेज एज ऑफ एल्डर्स जो बुजुर्ग रहते हैं वो 80-85 के होते हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव सम कंडीशन और द अदर। 70% हमारे पास जो एल्डर्स हैं दे हैव डिमेंशिया एंड a lot of them have Parkinson's as well. नाउ डिमेंशिया और मेंटल हेल्थ कंसर्न के साथ क्या होता है, जैसे सबने यहाँ पे बात की कि पैलिएटिव केयर ओनली इज ट्रू इन इट्स सेंस जब आप वो पर्सन सेंटर्ड करते हैं, जब आप पेशेंट का ओपिनियन लेकर के फैसला लेते हैं। बट इन अ कंडीशन जहाँ पे डिमेंशिया हो जाता है या कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न है, वहाँ पे क्या होता है, वी गिव अप वेरी इजीली। हमें लगता है कि उनको नहीं पता है वो कैसे डिसीजन ले पाएंगे, एंड अ वेरी एंड अ डिलेमा दैट वी फेस वेरी ऑफन इज जैसे कि they are unwell and they need to be intubated या कुछ भी इन्वेजिव करना होता है। इस केस में उनका जब हमें पहले डायग्नोसिस पता चलता है कि वो शायद अपनी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सो उस केस में फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करना चाहिए कि आप उनकी प्रेफरेंसेस समझ लीजिए, बिकॉज द क्वेश्चन ओवर हियर इज पेशेंट राइट्स। तो हमारे एल्डर का राइट क्या है कि मैं कैसे जाऊं, and if you ask this question even to a young person, everyone has an opinion on how they want to pass away, right? And people shy away from talking about death, and we talk about quality of life a lot, but we should know that quality of death is also a metric which is indexed and tracked, and long term care homes में तो होता ही है। तो हमें ये थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए कि हम थोड़ा एफर्ट लगा करके उनसे समझे कि आप क्या चाहते हैं। जो आपने बात करी रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशंस की, ये कभी कभी बहुत डिस्ट्रेसिंग हो जाता है, स्पेशली फॉर समवन विद डिमेंशिया, बिकॉज वो और it just the stage just progresses very quickly. So that's a small point from my end, because this is something which requires effort from our side. They will not even know ki they are in palliative care and their life is going to be so complex. So I would also like to just add on to that. Yeah, Dr. Yes, so I think हमारे यहाँ पे ये concept मतलब बहुत commonly नहीं है, but in many developed parts of the world उसको advanced directive कहते हैं. So and that is legally binding. So definitely ये in situations like where you expect कि memory, cognitive faculties affect हो सकते हैं, तो ये थोड़ा जल्दी ही फैमिली से और
पेशेंट से हिमसेल्फ और हरसेल्फ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है हमारे इट मे नॉट बी अ लीगल रिक्वायरमेंट इन आवर कंट्री बट इस तरह की एंड ये काफ़ी टाइम कुछ चीज़ों में हम करते भी हैं स्पेशली जो जैसे यू नो पार्किंसंस डिसीज में फॉर एग्जांपल समटाइम्स कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ते हैं तो अर्ली ऑन इन द इलनेस ये थोड़ा सा डिस्कस करना एंड पेशेंट का राय लेना एंड इफ पॉसिबल एट ऑल ऐसे एडवांस डायरेक्टिव ये शायद फॉर पेशेंट्स हु आर यू नो इंटरेस्टेड टू केयर वेयर द इमीडिएट फैमिली इज नॉट अराउंड उनके लिए तो शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज करना। एंड एक चीज और मैं और कहना चाहूंगी, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, इन आवर सिचुएशन बहुत बार ऐसे दिखते हैं कि व्हेन वी ब्रेक अ डायग्नोसिस और कुछ न्यूज जब बताते हैं बहुत टाइम फैमिली का एक रिस्पॉन्स होता है कि इनको मत बताइए, कि माता जी को मत बताइए। तो ये मैं इस राय से मतलब आई डोंट रियली बिलीव इन दैट, बिकॉज उसमें आप उनको थोड़ा सा इन्फेंटलाइज कर रहे हैं। वो भी एक इंसान है जो अपना उनको हो सकता है उनका लेवल ऑफ एजुकेशन उनके बच्चों जैसे या इतना ना हो, बट वो भी एक इमोशनली केपेबल इंसान है और उनको जिस तरह से वो समझ सकते हैं, जिस तरह से वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनके लाइफ के डिसीजंस बना सकते हैं, उस तरह का उनको एक्सप्लेन करना एज अ डॉक्टर ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मे बी एज अ कैंसर फिजिशियंस आप भी ये फेस करते होंगे, हम बहुत बार ये फेस करते हैं जब डायग्नोसिस बताते हैं हम डिमेंशिया या पार्किंसन डिजीज, उनको मत बताइए, बट मेरे को लगता है ये उनको भी समझाना। और ऐसा नहीं है जैसे पार्किंसन डिजीज है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हताश होने वाली बीमारी तो है नहीं है। आजकल कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है, हो सकता है वो जड़ से खत्म ना हो, बट बहुत सारे इंटरवेंशंस है हमारे पास जिससे ओवरऑल पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये समझा के उनको एक्सप्लेन करना, उनको भी साथ में लेना बहुत जरूरी है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये लिविंग विल की भी वो बता दी है, तो वो भारत में भी अब ये है कि आप अपनी जो चॉइस है वो पहले ही एडवांस डायरेक्टिव के तौर में दे सकते हैं। हाँ, इस पे अभी जो इसकी एग्जीक्यूट करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट। लेकिन पिछले साल ही हमने इस विषय पे काफी बातें करी थी और हमें पता है कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिविंग विल को भी लीगल सैंक्टिटी दे दी है, बट शायद ये अभी एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। आई थिंक डॉक्टर गौरव के एक किसी पेशेंट ने अपनी लिविंग विल बनाई भी थी इन प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो जो सारे बहुत सारे चीजें हैं उसमें। I think one of the Dr. Gaurav's patient did do it. Am I right, Dr. Gaurav? जी बिल्कुल सही। है ना? इतने सालों से हम काम कर रहे हैं पैलिएटिव केयर में, अभी तक मेरे ख्याल से मैंने एक ही पेशेंट देखा जिनके पास लिविंग विल थी, एंड वो काफी टाइम से एसोसिएटेड थे ऑन्कोलॉजी से और कई एडमिशन हुए, पर तब इस बात का जिक्र नहीं हुआ था। और उनका लास्ट एडमिशन जब वो हुआ तो उनकी लिविंग विल उनके परिवार वालों ने हमसे साझा करी थी और हमने फिर उसके अनुसार ही उनकी केयर करी। तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि सरोगेट डिसीजन मेकर जब हो जाते हैं, जब दूसरे लोग आपके लिए आपकी लाइफ और डेथ का डिसीजन ले रहे हैं, तो किस प्रकार की केयर होनी चाहिए, ऐसा डिस्कशंस बहुत कॉमन नहीं है हमारे कल्चर में, पर कई बार वो गाइड कर सकता है परिवार वालों को कि किस प्रकार का केयर और अटेंशन मिलना चाहिए। जी, आई थिंक मेरे जो मैंने क्वेश्चन सोचे थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम सब ने वैसे ही डिस्कशन में कर दिए हैं। सो एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं दो चीजें एक पूछना चाह रही थी। एक तो हाउ टू टेक केयर ऑफ बेड रिडन पेशेंट्स। डॉक्टर गौरव, वुड यू लाइक टू टेक दैट जस्ट अ लिटिल बिट, कुछ टिप्स फॉर केयर गिवर्स। बहुत सारे हमारे एल्डरली बेड रिडन हो जाते हैं, तो वो उनको बेड सोर्स हो जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। सो वुड यू लाइक टू टेक दैट? एक क्वेश्चन है जो कि एक चैट बॉक्स में है, बहुत देर से वो बेचारे कह रहे हैं, तो मैं उसमें पार्शियली आंसर कर देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि बहुत सारे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको भूख नहीं लगती है, वो खाना नहीं खाना चाहते,
तो दवाइयाँ देनी है और वो उनको ये कहा जाता है कि खाने के बाद ले लीजिएगा, बट वो दे डोंट फील लाइक ईटिंग। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है, और मुझे लगता है कि हमें पेशेंट के साथ बैठ के उनको ये समझाना चाहिए कि ये जो दवाई ज़रूरी है, और अगर वो पूरा फुल स्टमक नहीं ले कर सकते तो एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत हम उनको दलिया या कुछ इसमें एक उसके उनके घर वाले या जो एक जो केयर गिवर है वो उसकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको समझाएं कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हमें खाली पेट नहीं दे सकते। तो इसकी लिए आप प्यार से समझा के उनको कुछ खिला के और फिर ही दवाई खिलानी चाहिए। आई थिंक इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट यूज करना ज़्यादा ज़रूरी है, और थोड़ा सा पेशेंट की को भी समझाना ज़रूरी है। तो अगर तो पेशेंट बहुत ही बेड रिडन है और राइट्स टू पे है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो कॉन्शियस है और वो नहीं खा पा रहा है तो समझा के ये भी बातें की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सारे ऑन्कोलॉजी में पैलिएटिव केयर पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है, एंड द बेसिक एडवाइस जो हम देते हैं उनको इज स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। मोस्टली हम ना चाहते हैं 4 चीजें उनको सर्व कर देते हैं पेशेंट को जिसको भूख ही नहीं लग रही है, तो हमेशा थोड़े सा उनको दो सो दैट वो खा पाए। इतना सारा खाना देख के वो वैसे ही नहीं खा पाते हैं। सेकेंड इज प्रेफरेबल मील्स जो मरीज को पसंद है। हमेशा जरूरी नहीं है कि वो कमजोर हैं तो वो दलिया खिचड़ी खाएंगे, जो मरीज को पसंद है तो वो वाली चीजें दें, थोड़ा थोड़ा दें, बारी बारी दें। और लिक्विड्स, मोस्टली उनका मुंह बहुत ड्राई होता है और टेस्ट नहीं आ रहा होता है, किसी को म्यूकोसाइटिस होता है, मुंह में छाले और ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो ठंडी मीठी चीजें, ये सब चीजें वो खाना प्रेफर करते हैं। सो स्मॉल और बारी बारी खिलाना, प्रेफर्ड मील्स देना, और कम खाते हैं तो एनर्जी डेंस करके देना कि अपने खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा घी डाल के या एक्स्ट्रा बादाम या उनका पाउडर करके रखें और वो डालकर दें, तो पेशेंट्स का कम खाने में ज्यादा आहार अंदर जा पाता है। आई थिंक हमारे पास 5 मिनट्स बचे हैं। 2-3 क्वेश्चंस मेरे इंपॉर्टेंट बचे हैं। डॉक्टर गौरव, जस्ट 2-3 टिप्स फॉर बेड रिडन पेशेंट्स फॉर आवर caregivers, please. I think first and foremost is to communicate how to deal with this situation, and that would be कि अब ये बेड शोर हो गया है, इसका कारण ये है कि पेशेंट अपने आप से करवट नहीं बदल पा रहा है या अपना हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहा है। तो जो इशू है उस पे ज़्यादा फोकस करना, और जैसे कि बड़े आसानी से लोग डाइपर्स पे निर्भर हो जाते हैं और हाइजीन का इशू नहीं फोकस कर पाते हैं, या कई बार जैसे हमने इनिशियली बात की थी कि केयर गिवर्स उतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। अगर एक सिंगल केयर गिवर है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पेशेंट का हाइजीन और केयर 24 आवर्स इंटू 7 डेज उस चीज को प्रोवाइड करना। so that I think, and there are other sometimes remedies और solution जिन पे हमें निर्भर करना पड़ता है, एयर या वाटर मैट्रेस या फिर मोबिलाइजेशन पे पेशेंट की फोकस करना पड़ता है। और जो बेड शोर बन गया है उसकी हीलिंग के लिए ऑब्वियसली एंटीबायोटिक, क्लीन ड्रेसिंग्स एंड रेगुलर चेंज ऑफ clothes and maintaining the integrity of skin with good moisturization, और dryness भी prevent करनी है और moisture भी prevent करना है। बिल्कुल, है ना। सो एयर एंड वाटर, एयर या वाटर मैट्रेस, देन हमारे 2 आवरली एटलीस्ट 2 आवरली अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एयर मैट्रेस पे 4 आवरली पोजीशन चेंज एंड क्लीनिंग एंड कीपिंग द एरिया ड्राई। तो पेरिनियल हाइजीन, यूरिन है या मोशन हो जाता है तो उसे रेगुलरली क्लीन रखना। एंड नेहा के लिए एक क्वेश्चन था कि नेहा, हमारे कल्चर में पेशेंट्स को नहीं छोड़ना चाहते, उनके पास टाइम है या नहीं है, केयर गिवर्स के पास वो एक टैबू है कि आपने छोड़ दिया उनको असिस्टेड लिविंग में या इसमें, तो कोई टिप्स केयर गिवर्स के लिए, हाउ दे कैन काइंड ऑफ डिक्रीज द गिल्ट, और व्हाट इज इट, हाउ डू यू फेस सच, डू यू फेस सच थिंग्स, एंड हाउ डू यू देन, कैसे आप उसको ओवरकम करते हो? राइट, या बहुत इम्पोर्टेंट बात है डॉक्टर मेघा। एंड ये तो आई थिंक कल्चरली ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने जरूरी हैं, बट एज अ कल्चर
personally I feel ये चीज नहीं बदलेगी. We will never be comfortable with the fact that yes, it's okay to send your parents to a home. But कई बार ये डिसीजन लेना पड़ता है, और ये हमें सबसे पहले इसकी एक ही आंसर है, अवेयरनेस. एंड अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या आप वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको दे सकते हैं. एंड जब हम ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे शब्द हम यूज करते हैं ना, तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या मतलब है. तो अगर किसी को कोई क्रॉनिक कंडीशन है, उसमें प्रोफेशनल केयर की जरूरत है, अगर आप घर में दे सकते हैं, अगर आपके पास वक्त है, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल हेल्थ की. कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने दवा दे दिया, खाना दे दिया, दैट्स इट. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ, जब आप खासकर बुजुर्ग होते हैं, तब आपको दवा और फिजिकल हेल्थ से ज्यादा आपको कंपनी और इमोशनल और स्पिरिचुअल एंड सोशल चीजों की जरूरत होती है. तो क्या आप वो नीड फुलफिल कर सकते हैं? इफ नॉट, देन यू आर बीइंग सेल्फिश. तो ये कई बार ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करना जरूरी होता है. वी शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज हमारा इकोसिस्टम एंड सोशल स्ट्रक्चर इज चेंजिंग. औरतें काम कर रही हैं, करना चाहिए भी. एंड पीपल के पास इसको हमें वी एक्सपेक्ट कि घर के सारे लोग काम भी करें और घर पे केयर भी हो जाए, तो दोनों चीजें नहीं हो सकती. इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए. तो हम सोसाइटी को एक साथ तो नहीं चेंज कर सकते हैं, अपने आसपास में लोगों को नॉर्मलाइज कीजिए कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो किसी को ले आइए घर पे, अपॉइंट कीजिए, होम डोमेस्टिक हेल्प को ही कीजिए, लेकिन थोड़ा ट्रेन कर दीजिए. या आप कहीं और जा सकते हैं, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन वही कीजिए जो उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रिजर्व कर पाए, उनका मन भी अच्छा रख पाए. सो आई थिंक दिस इज द वे, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर आप नहीं करेंगे तो क्वालिटी ऑफ डेथ, जिसको मैंने ब्रीफली थोड़ा बोला था, कि क्वालिटी ऑफ डेथ जो होती है कि आप अकेले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं चाहेंगे कि आप जब आप गुजरे तो आप अकेले रहें, आप पेन में रहे, आपको कोई हाइजीन इशू हो, जो बेडसोर मैनेजमेंट की बात की. तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप किस तरीके से गुजरे. तो वो क्या अंत आप उनको उनकी मर्जी का अंत दे सकते हैं या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन जो फैमिली को पूछनी चाहिए अपने आप को. यस. एंड डॉक्टर रूपा से एक और क्वेश्चन था आपके लिए कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, जैसे जो डिमेंशिया है या पार्किंसंस है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम बहुत बार ना मतलब वो हमेशा ओपीडी में जाते हैं और ये सब पूछकर, बस दवाई पूछकर आ जाते हैं, कि हम क्या एक्सपेक्ट करें. बहुत सारे केयर गिवर्स ये क्वेश्चन अपने नॉर्मल फिजिशियन से पूछ नहीं पाते, तो कि क्या ये बढ़ता चले जाता है, एंड टुवर्ड्स द एंड क्या होता है, थोड़ा सा इन ब्रीफ इफ यू कैन जस्ट हमारे केयर गिवर्स के लिए बताएं तो. यस, थैंक यू डॉक्टर मेघा. तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला, ये न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियां हैं. तो इन जनरल इस तरह के डिमेंशिया, अल्जीमर्स हो या फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया हो और पार्किंसंस डिसीज है, ये सब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ने वाली बीमारियां हैं. तो बट उनके बढ़ने की गति अलग होते हैं. तो वो एक जैसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर अल्जीमर्स डिसीज लेंगे, तो हम जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन है, या पार्किंसंस डिसीज लेंगे, तो वो पार्किंसन डिसीज का हम डेकेड्स में देखते हैं, और उसमें भी विद इन दैट डिसीज इटसेल्फ बहुत वेरिएबिलिटी है. इन जनरल जिनको थोड़ा यंगर एज में शुरू होता है पार्किंसंस डिसीज, उनमें बहुत धीरे धीरे ही सिम्टम्स बढ़ते हैं. जिनको थोड़ा एल्डरली एज ऑफ द स्पेक्ट्रम, फॉर एग्जांपल अगर किसी को 50 साल में शुरू हुआ, उनका रेट ऑफ प्रोग्रेशन, और जिनको 80 साल में पार्किंसंस डिसीज सेम बीमारी शुरू हुए, उनका रेट ऑफ प्रोग्रेशन अलग होता है. बट नेवरदलेस जैसे साल बीतते जाते हैं, धीरे धीरे ये दिक्कतें, चलने की प्रॉब्लम्स, पार्किंसन डिसीज के बारे में कहें तो फॉल्स, ये सब बढ़ सकते हैं. यूजुअली 5-10 साल बाद या 15-20 साल बाद कुछ लोगों में थोड़ा सा मेमोरी के प्रॉब्लम्स ये बढ़ सकते हैं, ब्लैडर के इश्यूज आ सकते हैं. एंड बट इन जनरल इस तरह के एंड ये मैं कह रही हूँ पार्किंसंस डिसीज की बात. वो और भी बीमारियां हैं जो इनिशियली पार्किंसंस डिसीज जैसे लगते हैं, बट हम उनको एटिपिकल पार्किंसनिज्म कहते हैं. मतलब पार्किंसंस डिसीज जैसे हैं बट वो कुछ अलग तरह की बीमारियां, उनमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये दिक्कतें बढ़ सकते हैं. तो बट इन जनरल इन बीमारियों में the major problems as that we are looking at are falls.
वन ऑफ देम इज फॉल्स. अगर हम फॉल्स प्रिवेंट करें, एंड फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो काफी हद तक हम थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं, एड्रेसिंग नॉट ओनली द प्राइमरी इलनेस बट विजन, हियरिंग, सेंसेशन, है ना, एंड एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन जो उनको उनके लिए सेफ बनाए, एंटी स्किड जैसे सर्फेसेस, हे होल्ड रेल्स ये लगाएं, लाइटिंग अच्छा करें, एंड अप्रोप्रिएट असिस्टेड एम्बुलेशन डिवाइसेस यूज करें, जैसे कि यू नो वॉकर है, केन है, अगर बहुत ज्यादा बैकवर्ड फॉल्स हैं तो व्हील चेयर. तो इनसे हम फॉल्स अगर प्रिवेंट करें. और स्वॉलोइंग की डिफिकल्टीज, ये अनदर चीज है जो एज टाइम पासेस बाय आ सकते हैं. तो डिस्फेजिया या स्वॉलोइंग में खांसी आना, एस्पिरेशन होना, तो ये चीजें अगर हम with medications as well as physiotherapy and allied healthcare practices, अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो काफी चीजें, these are the two major things that cause problems इस तरह की neurodegenerative बीमारियों में later on. Yes. जी, थैंक यू डॉक्टर गौरव. एक्चुअली मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. कोई चैट पे क्वेश्चंस हैं क्या that we need to take? Can you see? No. वो आंसर कर दिए थे वो. Thank you sir. मैं एक अंत में एक ही बात बोलूंगा कि स्पेशली केयर गिवर्स के लिए, स्पेशली जो लोग साथ दे रहे हैं एल्डरलीज का, कि उनको भी एक दिन उस अवस्था में पहुंचना है. तो उनको जो एक्सपेक्टेशन है कि उनके समय में जो उनका ध्यान कैसे रखा जाए, तो वही वो कोशिश करें अपने एल्डरलीज का ध्यान रखने में. ये एक मैसेज है जो कि मुझे लगता है कि करना चाहिए. अभी मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को नहीं भेजना चाहते हैं ऐसे होम्स में, लेकिन वो ध्यान भी नहीं रख पा रहे हैं. मैं आपसे ये इस बात को, स्पेशली शहरों में ना उनके पास समय है, और शायद वो एक इमोशनल बॉन्डेज भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है. उससे ज़्यादा ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स थोड़े ज़्यादा अटैच रहते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. तो वी शुड नाउ वेरी सीरियसली थिंक ऑफ गोइंग बैक टू सॉर्ट ऑफ कंबाइंड फैमिली सिस्टम, जो कि शायद अब वो खत्म ही हो रहा है हमारे शहरों में. तो जिससे कि जो एल्डरली के लिए कुछ तरीके हैं जो कि वो अपना समय और मेंबर्स के साथ बिता सकते हैं. बट अल्टीमेटली हमें इस बारे में भी सोचना है कि कैसे हम अपनी जो खासकर जो 50s में है उनके लिए मैं ये बहुत सीरियसली बताऊंगा कि स्टार्ट टू थिंक हाउ यू वुड लाइक योर next decade to be spent, especially after 60 years, which you will be very active, but unfortunately हम प्लान नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से हम we start to be dependent on others. So plan well, और जहाँ पे भी जाना है आप जरूर इसके बारे में सोचिए और पहले से ही प्लान करें. थैंक यू. बिल्कुल सही. पैलिएटिव केयर की एक डेफिनेशन है जो मैककैफरी ने दी थी, that palliative care is the care that I would like to be given when my time comes. So yes, this holds so true, है ना. So care for the ones जैसे हम खुद की care चाहते हैं. So thank you so much. I'm so happy that we had such an enlightened panel today. And so last of all, I think एक बहुत important message है कि please अपने elderly parents या friends या जो भी हैं उनको बात करने का मौका दें. Listen to them. वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो इतना स्लो होते हैं कि हमारे में उतनी पेशेंस ही नहीं होती है उनको सुनने की और उनका ओपिनियन जानने की कि वो क्या चाहते हैं अपनी केयर के बारे में. तो उनको सुने, उनको हमेशा इन्वॉल्व करें उनकी खुद की केयर में. एंड बाकी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए. थैंक यू सो मच एवरीवन. एनी लास्ट कमेंट्स बाय एनी ऑफ द पैनलिस्ट? दे आर मोर देन वेलकम टू गिव दैट. मेघा आपका धन्यवाद, और गौरव आपका धन्यवाद. आपने मौका दिया एक बार फिर मुझे आपके साथ जुड़ने का. आई एम रियली फीलिंग प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली. थैंक यू. Thank you sir. It's all pleasure, our privilege to see you, to meet you. It's always so much pleasurable to hear from you. I've sincerely never seen a physician as accomplished, as calm and composed. उनका इतना busy OPD होता है, but इतने calm way में वो सब patients से बात करते हैं. So I'm really, if I can be 1% of what he is. Thank you so much everyone. सब लोग जिन लोगों ने हमें आज join किया, thank you so much अपने time के लिए. So every second Wednesday we meet इसी link पर
Second Wednesday, 7 to 8 p.m. Caregivers Hour में with new topics हर बार. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Megha. Thanks, Dr. Thanks, Gaurav. Neha. Thanks, Dr. Rupa. Thanks, Dr. Gaurav. Thanks. Thank you Singh all. sir. Thank you.